MySQL database. With PHP, you can connect to and manipulate database. MySQL is most popular database system used with PHP. ठीक है? What is MySQL? MySQL is a database system used on the web. MySQL is a database system that runs on a server. सर्वर क्या है? अपाचे, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने लोकल सिस्टम को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है. MySQL is ideal for both small and large application. ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बना सकते इसके अनुसार. MySQL is very fast, reliable and easy to use. MySQL use standard SQL. SQL stands for Structured Query Language. MySQL complies on a number of platforms and MySQL is free to download and use. इसके लिए आपको कुछ भी अलग पे नहीं करना है. जैसे हम लोग वो चलाते हैं ना मोंगो, तो मोंगो लिमिटेड ही चलता है फ्री, नहीं तो आपको उसको खरीद के चलाना पड़ता है. ठीक है. MySQL is developed, distributed and supported by Oracle Corporation. ये वही है जो जावास्क्रिप्ट को होल्ड करता है अपने पास. ठीक है. MySQL is named after co-founder Monty Wagner's daughter Mai. तो ये इनकी बेटी का नाम था और उन्होंने उसको हमेशा के लिए जोड़ दिया SQL के साथ, तो इसलिए इसका नाम पड़ा MySQL. तो इन पर्सन ने जो को-फाउंडर थे मोंटी वैगनर्स, इन्होंने बनाया था SQL, लेकिन बेटी का नाम साथ में लगा दिया. इनकी बेटी का नाम था माई. तो कई बार इंटरव्यू पूछा था व्हाट इज माई, तो माई का तो पता ही नहीं. देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ माई. SQL की होती है. तो माई क्या है? डॉटर का नेम है, वो प्रीफिक्स है एक तरह का. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए हम लोग जनरली जैसे सुनते हैं ना डेवलपमेंट कम्युनिटी के अंदर SQL नो SQL, तो वो लोग माई नहीं बोल रहे होते, वो सिर्फ SQL की बात कर रहे होते हैं, है ना. So the data in a MySQL database are stored in tables. ठीक है. अब जैसे हम लोग मोंगो वगैरह चलाते हैं, वहाँ टेबल नहीं होती. वहाँ क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा स्टोर होता है हमारा. A table is a collection of related data and it consists of column and rows. like a table जो हम लोग पढ़ के आए हैं. So database are useful for storing information categorically. A company may have a database with the following tables like employee, product, customer and order. कुछ भी हो सकते हैं. So PHP plus MySQL database system. PHP combined with MySQL are cross-platform. You can develop in Windows and serve on a Unix platform. मतलब कहीं भी बनाओ, कहीं भी चला सकते. Database queries. A database is a question or a request. We can query a database for a specific information and have a record set returned. Look at the following query using standard SQL. Like जैसे हम लोग database से select कर रहे हैं क्या? Select last name from which table? Employee. तो employee table के अंदर जो last name का column होगा, ये वहाँ से सारा data निकाल लाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर next देखते हैं. This will return all the last names from the employees table in the database. Facts about MySQL database. MySQL is the de facto standard database system for websites with huge volumes of both data and end user like Facebook, Twitter and Wikipedia. ये तीनों लोग जो हैं ये MySQL का ही इस्तेमाल करते हैं और तीनों वेल नोन नेम है. ऐसा नहीं कोई अनजान से है. फेसबुक को भी जानते हो, ट्विटर को भी जानते हो, विकीपीडिया को भी जानते हो, है ना. Another great thing about MySQL is that it can be scaled down to support embedded database applications. चलिए तो next topic पर आते हैं. MySQL Connect. PHP 5 and later can work with a MySQL database using. ठीक है. तो पहले वाले में चल रहा था 5, बाद वाले में जो चलना स्टार्ट हुआ वो था MySQLi. MySQLi is extension that the I stand for improved version of MySQL. तो अब जो हम लोग नए वर्जन में रिक्वेस्ट करते हैं 5 के बाद जितने भी आए उसमें MySQLi लिखा जाता है. MySQLi _ connect जो भी हम लोग चलाएंगे क्वेरी अपनी, बट पहले ओनली MySQL लिखा जाता था. ठीक है. पीडीओ मतलब PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स. तो जैसे आप लोग मोंगो में काम करते हो ना, वैसे हम लोग यहाँ भी काम कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इसके अंदर भी. So earlier version of PHP used the MySQL extension. However, this extension was deprecated in 2012. 2012 में बंद हो गया. 2012 के बाद से जो चल रहा है वो MySQLi ही यूज होता है. ठीक है. लेकिन बोला MySQL ही जाता है, लिखा MySQLi
MySQLi जाता है, तो इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आता है भाई आई क्या है ये, तो आई आपको बोलना है कि ये MySQL का इम्प्रूव्ड वर्जन है, आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव। सो नेक्स्ट, शुड आई यूज MySQLi और PDO, मुझे क्या यूज करना चाहिए? इफ यू नीड अ शॉर्ट आंसर, इट वुड बी वॉट एवर यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो वो इस्तेमाल करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बोथ MySQLi and PDO have their own advantages. PDO will work on 12 different database system, whereas MySQLi will only work with MySQL database. ठीक है, यानी कि MySQL वहीं वर्क करेगा जहाँ पर MySQL का सपोर्ट होगा, और PDO अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम उसको कहीं पर भी चला सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी तुम्हें मोंगो में ले जाना है, ले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग डेटाबेस पढ़े ना, जैसे Nginx, पोस्टग्रेस, अलग अलग तरह का, कहीं भी चला सकते हैं। हाँ, सो अब इसका भी हम लोग आंसर ले लेते हैं कि मान लो भैया मैंने MySQL में काम कर लिया तो क्या होगा, तो यहाँ आगे देखो। सो इफ यू हैव टू स्विच योर प्रोजेक्ट टू यूज अनदर डेटाबेस, PDO मेक्स द प्रोसेस इजी, यू ओनली हैव टू चेंज द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड फ्यू क्वेरी। With MySQLi you will need to rewrite the entire code, queries included, मतलब सब कुछ बदलना पड़ेगा आपको। अब क्या करा जा सकता है कि भाई मुझे तो नहीं करना चाहिए, तो both are object oriented but MySQLi also offers a procedural API। तो API बन गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो PHP से क्या होता है, हम लोग API भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि काम अगर SQL में हो गया कोई बात नहीं, API बनाओ बिंदास, कहीं भी इस्तेमाल करो, क्योंकि API बनेगा तो JSON ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया अगेन। सो बोथ सपोर्टेड prepared statement protect from SQL injection and are very important for web application security। ठीक है, सो एक तरह से देखा जाए जो आप पढ़ रहे हो उसमें एथिकल हैकिंग आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर। आप जो काम करोगे वो हैक नहीं होगा, लेकिन अगर आप सही तरीका फॉलो नहीं करोगे तो आपका डेटा हैक होगा ही होगा। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब वेबसाइट का डोमेन खरीदते हैं तो हम लोग SSL खरीदते हैं साथ में, यानी कि HTTPS। S स्टैंड फॉर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, यानी कि हर एक वेबसाइट के ऊपर आपको ताला दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ जाते हैं, यहाँ क्लिक करें तो क्या दिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। आज की डेट में गवर्नमेंट भी खुद कहती है कि भाई ऐसी वेबसाइट पर पेमेंट या लॉगिन मत करो जहाँ पर HTTPS नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पर काम नहीं करना अपने को, नहीं तो दिक्कत में आओगे फिर बाद में, क्योंकि HTTPS उन्हीं को दिया जाता है जिनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है पहले, ऐसे कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो जब आप डोमेन रजिस्टर करने जाते हो तो आपसे आपका पैन नंबर वगैरह, आधार नंबर वगैरह कुछ भी ली जाती है आईडी, कि उसे अपलोड करो। तो उन्हें पता होगा ना, कल को अगर तुमने कुछ कर्म कांड किया तो पता लगा लेंगे। ठीक है, सो open a connection to MySQL। ठीक है, before we can access data in the MySQL database we need to be able to connect to the server। so पहला कोड क्या लिखा जाएगा, एग्जाम्पल MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, जैसे कि आप PHP, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सर्वर का नेम क्या होता है लोकल होस्ट, यूजर नेम क्या होता है हमारा रूट, और पासवर्ड हमारा क्या होता है ब्लैंक। तो ये तीन चीज आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने एग्जांपल के लिए यूजर नेम जो भी हमारा होगा वो लिखेंगे, और पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड होगा। अब ये कहाँ चलेगा, ऑनलाइन में आपका पासवर्ड होता है, ऑफलाइन में नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन में अगर डेटाबेस का पासवर्ड हो तो कोई भी घुस जाएगा डेटाबेस में। तो जब आपका डेटाबेस बनता है तो साथ में पासवर्ड मिलता है डेटाबेस का। ऑफलाइन में पासवर्ड नहीं होता, क्योंकि लोकली मेरे में चल रहा है तो मेरे में कौन आएगा मेरे अलावा, है ना। सो हम लोग यहाँ से एक रिक्वेस्ट चलाते हैं क्रिएट कनेक्शन, और यहाँ पर लोग लिखेंगे कोई भी वेरिएबल नेम लाइक कनेक्शन, और यहाँ लिखेंगे न्यू MySQLi, और आप ये तीनों वेरिएबल सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ पर कॉमा लगा के डिफाइन कर दोगे। अब बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ये ऊपर तीन चीज़ें ना हो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, लोकल होस्ट रूट पासवर्ड को ब्लैंक, ये भी एक्सेप्टेबल तरीका। इसके बाद आपने क्या करना है, कनेक्शन को चेक। कनेक्शन जब हम लोग चेक करने जाएंगे तो हमने यहाँ पर लिखना है $कनेक्शन, और यहाँ पर लोग लिखेंगे connect_error। अगर कनेक्शन में कोई एरर है तो यहाँ पर आपको एक डाइव फंक्शन में रिटर्न आएगा कनेक्शन फेल्ड, और क्या एरर है, मे बी डेटाबेस का नेम गलत है, मे बी सर्वर ही स्टार्ट नहीं है, तो ये आपको बता देगा उस केस में। हाँ
कनेक्शन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं कनेक्ट एरर। नहीं, यहाँ पर आपका जितने भी ये चीज़ें हैं सभी ऑब्जेक्ट हैं अपने आप में। तो ऑब्जेक्ट वो आपने पढ़ तो लिया, यहाँ पे यही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन जो है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हमने इस तरह से डिफाइन किया। और अगर एरर नहीं है तो हमें रिटर्न किया जाएगा एको कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब नोट ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जांपल अबव, डॉलर connect underscore error was broken until PHP 5.2.9 and 5.3.2. If you need to ensure compatibility with PHP version prior to 5.2.9 and 3.0, use the following code instead. तो आपने क्या करना है, चेक कनेक्शन इफ mysql underscore connect underscore error, तो आपको डाई फंक्शन में रिटर्न कराना है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड और mysql underscore connect underscore error। ठीक है, ये कौन से वर्जन है, पहले वाले, किससे 5.2.9 से पहले के जो है उसमें ये चलता है, लेटेस्ट में ये चलेगा। तब तो आप 8 पढ़ रहे हो राइट नाउ, जो आपका PHP का वर्जन है। अगर आप यहाँ जाके चेक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर PHP ini। तो PHP ini फाइल को जब लोग यहाँ से देखते हैं और ये ब्राउज़र पे भी खुल जाती है हमारी फाइल, तो ब्राउज़र में खुलने कमांड क्या है, यहीं पर मिलेगी आपको PHP ini। ये हमारी फाइल रुक जाओ, php इस लोकेशन को लोकेट करो और ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप ना ऐसे लिखोगे, छोड़ो इसको, यहाँ जाइए एडमिन पर। एडमिन में जब आप जाओगे तो क्या लिखा है, वेलकम टू XAMPP फॉर विंडोज़ 8.2 और यहाँ पर आपको मिलेगा इसमें PHP इन्फॉर्मेशन और क्या लिखा है हमारा PHP वर्जन। ठीक है, तो कहाँ से निकालना है, डैशबोर्ड के अंदर php.php से निकालना है फाइल। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ढूंढ के निकाल सकते हो, वहाँ से मत ढूंढो। इन्होंने मैं जो ढूंढा था तरीका वो उसमें चलता था XAMPP के अंदर। ठीक है, XAMPP में यहाँ से चलता है। तो यहाँ से आपको अपना वर्जन दिखाई दे जाएगा कि हम कौन सा वर्जन चला रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आप पता लगा सकते हो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसको बंद कर दो, यहाँ ये। और हाँ जी, तो हमने कनेक्शन बनाने का प्रोसेस देखा, कैसे बनेगा कनेक्शन। अब ये तो हुआ कोड, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यानी कि पहला हम लोग रिक्वेस्ट भेजें क्या है कि डेटाबेस को क्रिएट करो। हमने ऐसे क्लिक किया, हमने लिखा अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ
one or more tables, you will need special create privilege to create or to delete a MySQL database. So create a database, MySQL database using MySQLite. The create database statement is used to create database in MySQL. तो हमारा क्या लिखा रहा है? पहला सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है और डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। तो इस कोड को रिवील कर देते हैं, यहाँ से क्लोज और डेटाबेस के अंदर क्रिएट डेटाबेस। और ये जितना भी हमारा इसमें लिखा हुआ है पार्ट, इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाके डाल देना है। क्या लिखते हैं तुम लोग? टेक्स्ट एरिया। कैप्स लॉक ऑफ कर लेना। टेक्स्ट एरिया और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? रीड ओनली। क्लास लगा देते हैं, फॉर्म कंट्रोल और रोज लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको डिफाइन किया और कोड को हमने इसमें लाके कॉल कर देना है। इसके बाद लेस देन को एंटिटीज में चेंज कर दिया, %LT और %GT। तो ये अपना कोड अब चलेगा नहीं, ठीक है। अब अगर आप ब्राउज़र में इसको रीलोड करेंगे तो देखो एरर आएगा क्योंकि हमारा डेटाबेस बन चुका है, बट कोड आपको रिवील करा देगा। तो कोड आ गया ये। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हमारा जो सर्वर का नेम वो क्या है? लोकल होस्ट। डेटाबेस का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है, सॉरी, जो लोकल होस्ट का यूज़र नेम होता है वो होता है रूट। अभी रूट कहाँ मिलेगा आपको, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जब आपका माई एडमिन खुल जाता है, माई एडमिन के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यूज़र नेम, ठीक है। तो क्या है? रूट, होस्ट नेम लोकल होस्ट, पासवर्ड क्या है? नो। लेकिन हमें प्रिविलेज सारे मिले, हम सारे काम कर सकते हैं। हमने एक्सेस बंद नहीं किया कि वो क्या क्या चीज़ें कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है? क्रिएट कनेक्शन। तो हमने लिखा कनेक्शन इक्वल टू न्यू MySQLite, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तीनों चीज़ें डिफाइन है। पासवर्ड ब्लैंक है तो यहाँ पर पासवर्ड हमारा ऐसे, ये तीनों चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लाके। ये हमने यहाँ पर अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट एरर निकाला, डाई करेंगे कनेक्शन एरर, कनेक्शन फेल्ड, और जो भी एरर होगा वो लिख के आएगा आपको, और यहाँ से कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस बनाने के लिए हमने क्या क्वेरी चलाई है? SQL वेरिएबल क्या लिखा? क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है? MyDB। दिस इज अ डेटाबेस नेम। फिर क्या कर रहे हैं? इफ $कनेक्शन, क्योंकि आप रिक्वेस्ट इसमें भेज रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर SQL अपनी क्वेरी को, और अगर बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर हमें रिटर्न करो डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज आप बोलो एरर क्रिएटिंग डेटाबेस। तो क्या लिखा है? एरर क्रिएटिंग डेटाबेस। क्या बोलते हैं? करेक्ट सक्सेसफुली, एरर क्रिएटिंग डेटाबेस, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, MyDB डेटाबेस इज ऑलरेडी। मैंने बोला था ना एरर आएगा, तो वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि डेटाबेस बन चुका है, क्योंकि हमने ये बाद में ऑन सेट किया ना कोड वाला पार्ट, इसलिए आया है। तो देखो यहाँ पर आपका MyDB के नाम से डेटाबेस आ चुका होगा। अगर मैं इसको पेज को रिलोड कर दूँ तो आ गया। देखो अभी डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है इसके अंदर। सो नेक्स्ट आगे देखेंगे। When you create a new database, you must only specify the first 3 argument to the MySQLite object, server name, user name and password, जो हमने ऊपर यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जब कनेक्शन को नीचे चलाया तो हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट के अंदर से क्वेरी निकाली हमने, ठीक है। If you have a specific port, add an empty string to the database name argument like this: new MySQLite, localhost, username, port, password, और यहाँ से port। बट अभी ऑफलाइन में हमारे में ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑनलाइन में ही ऑटोमेटिक चलता है, वहाँ भी आपको जाकर सेट करने की जरूरत होती नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम लोग ठीक कर देंगे। तो जैसे कि मेरे ख्याल से 25 में सही हो जाएगा ये। 24 सही हो। चलिए, तो ये हमारा इसका कोड है और ये हमारा इसका आउटपुट है, ठीक है। डेटाबेस अपना क्रिएट हुआ। नेक्स्ट फाइल पर आते हैं। नेक्स्ट फाइल क्या है? अब डेटाबेस बन चुका है। डेटाबेस के अंदर में क्या बनाना है? टेबल। तो पहले वाली फाइल से हम लोग ये 2 चीज़ें उठा लेंगे और यहाँ लाके इसको कॉल कर लेंगे।
क्लोजिंग भी इसको डाल लीजिएगा। ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट। इसका जितना भी आपने यहाँ मैटर लिखा है इस पूरे को आपने कॉपी करके यहाँ भी रख देना है इधर, और वाइट स्पेस रिमूव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 32 लाइन की हाइट आपको यहाँ पर सेट करके आनी है। चलिए तो कोड पे नजर डालते हैं, वहीं पर कोड को समझेंगे ये क्या काम कर रहा है। बैक, क्रिएट टेबल। A database table has its own unique name and consists of column and rows. Creating a MySQL table using MySQLi, the create table statement is used to create a table in MySQL. So here we will create a table named MyStudents with 5 columns: ID, first name, last name, email and registration date. तो अब डेटाबेस अगर हम बना चुके हैं तो आपको चौथा ऊपर वेरिएबल डिफाइन करना है, db नेम। नेम क्या है? माई db। हम यहाँ पर अब डेटा जो कनेक्शन है अपना उसके और न्यू MySQL ऑब्जेक्ट के अंदर डेटाबेस नेम को भी पास कर देंगे। इसके बाद ये कनेक्शन जो चेक करने का सिस्टम वो एज इट इज रह जाएगा। नीचे की क्वेरी पर ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? $SQL और हमने बोला क्रिएट टेबल माई स्टूडेंट्स। उसके अंदर हम बोल रहे हैं आईडी इंटीजर रहेगा, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। अब इसका मतलब क्या हुआ? आईडी नल नॉट नल का मतलब ये हुआ कि वो खाली नहीं रह सकता, उसके अंदर डेटा चाहिए ही चाहिए हमें, नॉट नल। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कोई एंट्री अगर डाली इसमें तो क्या होगा कि वो अपने आप आईडी इंक्रीज करते रहेगा, जैसे 1 2 3, क्योंकि जब तक आपके ऑब्जेक्ट में डेटाबेस में हर एक रो की आईडी यूनिक नहीं हुई तब तक आप उसको CRUD परफॉर्म नहीं कर सकते हो, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो सबसे पहला काम टेबल के अंदर क्या होता है? जब हम लोग डिफाइन करते हैं आईडी जरूर लगाते हैं। उसको हैंडल किस बेसिस पे करोगे? जैसे मान लो क्लास में तुषार नाम के 2 बच्चे, अब मैं कोई क्वेरी चलाता हूँ, भाई मुझे तुषार को अपडेट करना है, तो कौन सा तुषार? दोनों हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे जब लोग पढ़ते हैं ना तो एक जब क्वेरी चलाते हैं तो वेयर कहाँ अपडेट करना है। अगर आपने बोला कि भाई मेरे को डेटाबेस से डिलीट करना है लेकिन मैंने ये नहीं बताया वेयर, सब गया। आपने ये नहीं बताया वेयर अपडेट, तो सब अपडेट, तुम्हारा डेटाबेस पूरा पूरा खत्म एक ही बार में। ठीक है। तो इसलिए डेटाबेस का काम कंपनी के अंदर हर किसी को नहीं दिया जाता है। एक डेडिकेटेड बंदा होगा जो सिर्फ डेटाबेस को ही हैंडल करता है, या उसके बैकअप में कोई दूसरा बंदा होगा। ये नहीं कि ये भी हैंडल कर रहा है तुम भी हैंडल कर रहे हो, भाई तो तुम लगा दोगे किसी दिन डेटाबेस की, हो गया काम, कंपनी बर्बाद 2 मिनट में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेरी जो है बहुत सोच समझ के और 10 बार पहले सोच लो कि इसका आउटकम क्या आएगा, तभी चलाना होता है। ठीक है। तो तुम्हें कितना भी अच्छा डेटाबेस आता तुम्हें मिलेगा नहीं, पहली चीज़ तो एक्सेस किसी भी कंपनी के अंदर जाके। डेटाबेस के आर्किटेक्ट अलग होते हैं बिल्कुल। डेटाबेस बना कोई भी सकता है, लेकिन डेटाबेस से क्वेरी करके डेटा उसको देना, उस टेबल से उसमें लेके आना, ये अपना आप एक आर्ट है। ठीक है। इसको बोलते हैं इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सारे तरह के जॉइन आते हैं फिर इसके अंदर। तो हमने यहाँ से क्वेरी चलाई है क्या? SQL इक्वल टू, ये नेम कुछ भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हम इसको मीनिंगफुल बना रहे हैं कि SQL में हम लोग क्वेरी चला रहे हैं, क्रिएट टेबल करो, टेबल का नाम क्या रख दो, उसके अंदर 5 फील्ड बनाओ, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट। अभी हम लोग डेटा नहीं डाल रहे, अभी हम लोग 5 कॉलम बना रहे हैं एक टेबल के अंदर। हमने आईडी को बोला है कि आईडी जो है वो मेरी प्राइमरी की है, यानी कि वही सब कुछ हैंडल करेगी, प्लस ऑटो इंक्रीज होगी, यानी कि अगर मैंने कल को उसके अंदर स्टूडेंट डाले तो वो ऑटोमेटिकली सबको अलग अलग आईडी दे देगा। इसके बाद फर्स्ट नेम जो होगा वो वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब ये है कि मैं नंबर भी डाल सकता हूँ, टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, और उसकी जो लेंथ होगी वो 30 की होगी और खाली नहीं हो सकता। इसी तरह से लास्ट नेम के अंदर भी मैक्सिमम 30 कैरेक्टर, बट खाली नहीं होगा। ईमेल बड़ा होता है तो हमने उसको 60 कैरेक्टर दिया हुआ है। ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हो, 255 तक डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ईमेल जो है वो भी वेरिएबल कैरेक्टर, और रजिस्ट्रेशन डेट में हमने लिखा टाइम स्टैम्प, यानी कि जब आपका रिकॉर्ड बनेगा
तो एक टाइम स्टैम्प लग जाएगा अभी किस टाइम पर वो रिकॉर्ड बना, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प और ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि टाइम स्टैम्प बनेगा, जिस टाइम पर बना वो टाइम लिखाएगा, और कभी फ्यूचर में अपडेट हुआ तो वो टाइम भी कैप्चर हो जाएगा उसके साथ। अब मान लो कि तुम्हारी एब्सेंस में किसी ने डेटाबेस से कुछ छेड़खानी की, तो तुम्हें पता लग जाएगा भाई कब अपडेट हुई है, भाई किसने क्या बताओ। समझ गए ना। तो जैसे आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो तो वहाँ लिखा था लास्ट कब आए थे, तो ये जीमेल में जैसे जाते नीचे लिखा था कहाँ कहाँ पर लॉगिन हो तुम। अब तुम तो भाई एक ही जगह लॉगिन, भाई दो जगह मैं कहाँ हूँ, है ना। अगर आईपी अलग अलग आ रहे हो तो पता चल जाएगा ना तुम्हें कि लोकेशन एक गुड़गांव दिखा रहा है, एक हरियाणा दिखा रहा है, एक दिल्ली दिखा रहा है, तो यानी कि कई जगह पर अकाउंट तुम्हारा लॉगिन हो रखा है। तो आजकल तो ये नॉर्मल हो गया मल्टीपल जगह, जैसे घर में स्मार्ट टीवी है तो वहाँ भी जीमेल की आईडी लॉगिन हो रखी है तो उसकी लोकेशन अलग आएगी, आपके फ़ोन की लोकेशन अलग आएगी। डेस्कटॉप लॉगिन है घर पे, चाहे कोई भी चला रहा हो, क्रोम चला रखा होगा उसे तो उसकी लोकेशन आएगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरे कितनी जगह लॉगिन है। उसके अलावा अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है तो वो सस्पिशियस है, तो इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ। अगर किसी को पासवर्ड भी दे दोगे वो तुम्हारी मर्जी के ना लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे का जो हमारा पार्ट है वो क्या है, हम यहाँ पर जो पहले डेटाबेस के साथ करें सेम वही काम करना है, कुछ नहीं, क्योंकि पहले एसक्यूएल में क्रिएट डेटाबेस किया था कि हमने क्रिएट टेबल किया। आपने यहाँ पे लिखना है टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर नहीं बनता है तो एरर क्रिएटिंग टेबल आ जाए। तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, कनेक्ट सक्सेसफुल हो गया और टेबल भी क्रिएट हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको माई डीबी को क्लिक करूँगा तो देखो माई स्टूडेंट्स का नाम से टेबल बनी। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर फील्ड दिखाई देंगे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट। बन गए। तो ये स्ट्रक्चर है इसका पूरा। देखो प्राइमरी की लिखा था मैंने, की बनी हुई आ रही है उसके ऊपर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर डेटा डालने का। बैक करेंगे यहाँ से, इंसर्ट डेटा। अभी खोलेंगे नहीं, पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो डेटाबेस तक तो ये रुका रहता है, मतलब दोबारा नहीं बनाएगा, टेबल तक भी रुका रहेगा। अब जब मैं इंसर्ट डेटा को मैं दो बार अगर लोड करा दूंगा ना तो दो बार एंट्री बन जाएगी डेटा की, ठीक है। तो इसलिए पहले ही सेट करके चलेंगे फिर रन करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, कनेक्ट में हमारे प्री क्यू आ रहा है। अच्छा ये ठीक है, ठीक है। टेबल बन गई हमारी, टेबल पर आइए, एग्जाम्पल और इंसर्ट डेटा में जाएंगे। चल जा भाई, क्यों इतना नखरे दिखा रहा है। चलिए इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ से एंटायर कोड कॉपी, यहाँ पर कॉल और इसकी पोजीशन बैक। लाइन ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऑलराइट, तो चलिए रिफ्रेश एंड इंसर्ट डेटा। So insert data into MySQL using MySQLi. After a database and table have been created, we can start adding data in them. So here are some syntax rules to follow. The SQL query must be quoted in PHP, मतलब कोट में डालना है आपने। String value inside the SQL query must be quoted. Next, numeric value must not be quoted. The word null must not be quoted. अगर आप किसी को डेटा नहीं देना चाहते तो वहाँ लिख दो नल, ठीक है। तो खाली नहीं भेज सकते आप, नहीं तो एरर कर जाएगा। तो नल लिख दो कि मुझे इसमें डेटा, जैसे मान लो कि तुषार है और उसका कोई लास्ट नेम नहीं है तो लास्ट नेम में नल लिख दो, ले लेगा। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो जाने नहीं देगा, बोलेगा एरर। नहीं भाई, तो जब डेटा कल को फ्यूचर में फैच करो तो तुषार एक्स लिखा आएगा ना। हाँ हाँ, कौन सी वेबसाइट है ऐसी? DSU, ये क्या है? EU।
तो इन्होंने अपना खुद का स्टैंडर्ड बना रखा है, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड है नहीं। हमने आज तक अपने 24 साल के करियर में कहीं नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। तो इन्होंने खुद लिख दिया है कि अपनी तरफ से बना रखा है मर्जी से, कि जिसका नहीं तो वहाँ पर लिख दो। तो जनरली क्या होता है ना, एस के लिए अगर बनाना है तो NA चलता है, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एक्स जैसी कोई वो नहीं होती। ये तो और कंफ्यूज करने वाली बात है। तो देखते थे जब पहले कभी हम लोग RTO में अगर आपने नोटिस किया हो, कोई कार या कोई बाइक निकलती तो नंबर प्लेट NA होता था। ठीक है, तो या फिर लिखा था A/F। तो A/F का मतलब अप्लाइड फॉर, मतलब अप्लाई कर रखा है। NA जैसे कोई फॉर्म आप भर रहे हैं और वो चीज़ फॉर्म का पर्टिकुलर सेगमेंट आपको बिलोंग नहीं करता, तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, या अगर मैं कहीं पर कोई फॉर्म भर रहा हूँ लेकिन मेरे पास वो चीज़ नहीं, तो वहाँ लिख दो नॉट अवेलेबल, NA। तो जैसे COD है ना, तो COD का अपने अपने काम में अलग अलग रोल है। जैसे कैश ऑन डिलीवरी, गेम खेला हूँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी, अगर पढ़ रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ डिले। समझ गए ना? तो इनके अपने अलग अलग मतलब है, अलग अलग उसमें काम के अंदर। वैसे ही मैंने तुम्हें इसका बताया NA का मतलब, समझे? तो X गलत प्रैक्टिस है, नहीं है। वैसे तो पहली चीज़ ये कि हम लोग लास्ट टाइम अमूमन सबका होता है, बहुत सारे लोग जानबूझ के गायब कर देते हैं, किसी को पसंद नहीं होता वो बात अलग है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है। मिडिल नेम कभी भी कंडीशनल नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, मिडिल नेम अगर कोई दे देगा मोस्ट वेलकम, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मिडिल नेम के बेसिस कभी क्वेरी नहीं चलती। क्वेरी चलाने के लिए आपको लास्ट नेम चाहिए होता है, या फिर आपको फर्स्ट नेम के बेसिस पे क्वेरी चलानी है कि मेरे को इस तरह के सरनेम के सारे लोग ढूंढ के निकालने हैं। अब जैसे तुषार बहुत सारे हो सकते हैं, अब एक है तुषार सैनी, एक है तुषार शर्मा। ठीक है, अब तुषार ढूंढो तो सारे मिल जाएंगे, तो मेरे को लास्ट नेम पर ढूंढ के निकालने में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि तुषार को फाइंड करो और लास्ट नेम उसका ये होना चाहिए। तो एक सरनेम के सारे बंदे तुषार पकड़ के ला सकते हो। अब खाली तुम तुषार के फर्स्ट कॉलम में क्वेरी चलाओ तो तुषार तो वैसे कुछ भी हो सकता है, तुषार भार्गव हो सकता है, भारद्वाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लगे रहो ऐसे डेटा के साथ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर द वर्ड नल मस्ट नॉट बी कोटेड, क्योंकि नल इज अ प्रीडिफाइंड। जो चीज़ें प्रीडिफाइंड होती हैं, या जैसे नंबर जो होता है इंटीजर होता है, तो उसका हमें कोड में डालने की जरूरत नहीं होती है। So the insert into statement is used to add new records to a MySQL table। आप लिखेंगे SQL इक्वल टू insert into table का जो भी आपका नेम होगा और जो भी आपके फील्ड होंगे। ठीक है, तो जैसे आपका फील्ड हो सकता है मे बी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो उसी के अगेन फिर आप वैल्यूज लिख के क्या लिखेंगे, वैल्यू जैसे कि अभिषेक त्यागी, और आपका यहाँ पर email ID या जो भी है वो अपना पास करोगे। सो नोट, if a column is auto increment like the ID column, तो ID का कभी भी हम लोग डेटा यूजर से फिल नहीं कराते। ठीक है, तो यानी जब मैं यहाँ से क्वेरी चलाऊंगा तो ID का यहाँ कोई जिक्र नहीं होगा क्वेरी के अंदर। तो like the ID column or timestamp with default update on current timestamp like the registration date column, it is no needed to be specified in the SQL query। यहाँ पर नहीं लिखना है आपने। तो अभी जो हमने अपना टेबल बनाया था इधर, उसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, 3 चीज़ें बनाई है। तो आप यूज़र से 3 चीज़ें ही लेंगे, आईडी और रजिस्ट्रेशन डेट मेरा डेटाबेस खुद प्रोड्यूस करेगा। समझ गए? तो द फॉलोइंग एग्जांपल, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू माय स्टूडेंट टेबल। हमने ये सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक, जहाँ तक आपका कनेक्शन वगैरह का काम है। अब कोई टेबल नहीं होगी, अब कोई डेटाबेस नहीं बनेगा। डेटाबेस का बस आपको रेफरेंस देना है। क्या लिख रहे हैं हम लोग SQL में, इंसर्ट इनटू, क्या बनाया था टेबल, माय स्टूडेंट। उसके अंदर हमने 3 फील्ड बनाए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। चेक कर लो, मिसमैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद वैल्यूज आप लिखेंगे। हमने लिखा नितिन फर्स्ट नेम, कुशाल इज अ लास्ट नेम एंड नितिन कुमार उसका ईमेल आईडी हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। अब आप इसको यहाँ पर सेम रन करेंगे पहले की तरह। आप लिखेंगे कनेक्शन क्वेरी। ठीक है, हमारा चला इसमें SQL। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग एक मैसेज रिटर्न करें, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, नीचे आ रहा है। और अगर एरर होगा तो आपको एरर रिटर्न आ जाएगा उस केस में। तो चलो, ये फाइल अगर खुल चुकी है, तो अगर मैं यहाँ पर पेज को क्लिक करता हूँ, माई DB, माई स्टूडेंट्स, क्या दिखाई दे रहा है? ID 1 नितिन, कुशाल, ईमेल ID
और आप देखोगे तो 11:06 पर हमने फाइल ओपन की थी। उस टाइम पर हमारा टाइम, घंटे, मिनट, सेकंड तीनों चीज़ें कैप्चर हुई और आज की डेट भी आ रही है हमारी। हो गया ना कब? तो इसने पता लगा लिया इस चीज़ का कि कब ये रिकॉर्ड बना। अब देखो, मान लो अगर मैं पेज को इसको रिलोड कर दूंगा ना, तो ये एंट्री दोबारा डलेगी इसके अंदर और आईडी हो जाएगी 2। देखो पेज को हमने रिलोड किया, क्या लिखा था? न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, नितिन का दूसरा रिकॉर्ड बन गया 11/13/30, है ना। तो अभी तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि भाई जाओ बैकएंड में पहले चेक करो डालने से पहले कि भाई ये इस नाम का कोई बंदा पहले से है या नहीं है। तो जब आप कहीं पर अकाउंट बनाने जाते हो तो क्या होता है, पहले चेक हो जाता है कि बंदे की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के बेसिस हम पता लगाते हैं कि भाई इस नाम का बंदा पहले से तो नहीं है। भाई नाम तो भाई रंजीत बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, लेकिन रंजीत की ईमेल आईडी और रंजीत जैसा फ़ोन नंबर तो किसी और का नहीं होगा ना। तो हम दो चीज़ों पे पता लगाते हैं, भाई नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस या फिर ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। तो आपको पता चल जाता है अच्छा मेरा अकाउंट इस पर पहले से बना हुआ है। तो अभी हम लोग सिर्फ डेटा एंट्री करने का समझ रहे हैं, वो जब मैं आपको साइन इन साइन अप समझाऊंगा ना इसके अंदर तो आप क्लियर करेंगे वाली चीज़ें। तो समझ में आया कि मैंने फाइल अगर मल्टीपल टाइम अगर रिफ्रेश किया तो डेटा बनता जाएगा। देखो क्या समझ में आया, आईडी चेंज हो गया और यहाँ से ये भी चेंज हो गया। तो जब आप अब अपडेट की रिक्वेस्ट चलाओगे तो आप ये बोलोगे कि किस रो को मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ देखो ये है कॉलम आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये है रो। तो रो बिलोंग कर रहा है आईडी 2 को, रो बिलोंग कर रहा है आईडी 1 को। तो आप रो की रिक्वेस्ट चलाते हो कि मुझे इस रो को अपडेट करके आना है जहाँ पर आईडी इक्वल टू 1 हो या आईडी इक्वल टू 2 हो या आईडी इक्वल टू 3 हो, इस तरह से। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एंट्री डालने की। ये तो एक सिंगल एंट्री। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर नितिन के नाम से 2 एंट्री बन गई है ना, तो आईडी दोनों की अलग अलग है। अगर आपने आईडी डिलीट कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि अगला जो रिकॉर्ड आएगा वो 2 होगा, वो 3 होगा। समझ गए? आईडी चेंज नहीं होती है, आईडी यूनिक होती है। तो अगर 2 नंबर का डेटा डिलीट कर दोगे तो 2 के बाद 3 आएगा, 2 नहीं आएगा दूसरा। नहीं अब नहीं आएगा, 2 रिजर्व हो गया ना। इसीलिए क्या होता है जब जीमेल में आप चला रहे हो, जीमेल का तुम कभी यूज़र अकाउंट भूल गए तो ऐसा नहीं होता फ़ोन नंबर की तरह किसी और का लॉट हो जाएगा वो। समझ गए? क्योंकि वो यूनिक है। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या है, आपका अगर अकाउंट बंद, अगर आपने गूगल को बोला कि मेरा अकाउंट बंद कर दो, अगर आपने खुद से गूगल को भी ऑथराइज कर दिया तो गूगल तब भी वो ईमेल अकाउंट अवेलेबल नहीं करेगा इन फ्यूचर किसी को, क्योंकि नहीं पता ना तुम्हारे अकाउंट में क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। और कल को गूगल के ऊपर तुम केस कर दो, गेटिंग माय पॉइंट? तो गूगल कभी भी वो अकाउंट बनने ही नहीं देगा उस नाम से फिर कभी उसके डेटाबेस में। ठीक है, चाहे आपने डिलीट की रिक्वेस्ट ही क्यों ना चला दी, आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन गूगल वो दोबारा अकाउंट कभी नहीं बनने देगा, वो मिलेगा ही नहीं अकाउंट किसी को। तो जो आप गलत बना दो, सही बना दो तो एक ही चांस मिलता है, नहीं तो फिर दोबारा से नया अकाउंट बनाओ। ठीक है, और एक बार अकाउंट बन जाता है तो करेक्ट नहीं होता। अभी जैसे हम तो यहाँ पर बनाएंगे तो हम तो कर सकते हैं क्योंकि डेटाबेस मेरे हाथ में है, लेकिन गूगल का डेटाबेस तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना होता है। ना ही तुम गूगल से फ़ोन पे बात कर सकते, मैंने ये अकाउंट बनाया इसको ज़रा सही कर दो तो बन गया, कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट मल्टीपल क्वेरी। तो मल्टी क्वेरी कैसे चलाएं, तो इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे अगेन मल्टी क्वेरी वाले को, और यहाँ से हम लोग अपनी लाइन कॉपी करेंगे और यहाँ लाके करेंगे ऐड, और इसकी क्लोजिंग भी करा देंगे इस तरह से। यहाँ से एंटायर मैटर कॉपी, इन बिटवीन कॉल और सभी को सेलेक्ट, बैक करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। रिलोड एंड इंसर्ट मल्टी क्वेरी, हमने फाइल ओपन की अपनी। So multiple SQL statement must be executed with the MySQLi multi query। इससे पहले वाली जो फाइल थी उसमें लिखा था MySQLi query, अब क्यों हमारा फंक्शन बदल गया, क्या है, मल्टी क्वेरी। पहला चेंज। दूसरा, आप यहाँ पर जब डेटा डालेंगे ना, सामने देखो, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि अगर हम लोग सिंगल एंट्री डाल रहे हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा बिल्कुल, लेकिन लास्ट में आपका कोड जो होगा सेमीकोलन से पहले आ जाएगा।
ये सेमीकोलन नहीं होता सिंगल क्वेरी में। मल्टी क्वेरी में कोट से पहले सिंगल कॉलन आएगा। दूसरा, इटरेशन कैसे होता है, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ गए तो लिखते हैं प्लस इक्वल टू। पीएचपी में क्या चलता है, डॉट। तो यहाँ पर इटरेशन क्या होगा, डॉट इक्वल टू। रीअसाइन किया हमने एसक्यूएल को एक नया नेम, और हमने यहाँ से बोला फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो यहाँ पे सौरभ रावत, फिर हमने लिखा डॉट इक्वल टू इस तरह से तुषार शर्मा। ठीक है, तो क्या चल रहा है ध्यान दीजिए, प्लस इक्वल टू की जगह डॉट इक्वल टू। अरे ऑपरेटर पढ़ाया था पीएचपी का, ऐसे क्यों कंफ्यूज हो गए, क्लियर है ना। और यहाँ पर इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए सेमीकोलन कोट सेमीकोलन, लास्ट वाले पर बाहर जाएगा। अगर तुम्हें इन बिटवीन और ऐड करने तो फिर से आपको ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो हमने 3 रिकॉर्ड यहाँ से एक साथ डाले हैं। क्या लिखा हमने यहाँ पर, पहले था कनेक्शन क्वेरी, अब की बार क्या है मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी। बस क्या लिखा था, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर हम लोग अपनी फाइल को यहाँ पर जूम आउट करके रीलोड करते हैं तो देखेंगे आप 3 4 5 आपका नया रिकॉर्ड बन गया, और तीनों सेम टाइम पर बने। कब बने, 11 17 18 सेकेंड के ऊपर। अगर तुम्हारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है सारे एक टाइम पर ना बने, जितने जितने टाइम पर बनते जाएंगे वो आपको एक टाइम पर दिखाएगा, बाकी आपको अलग टाइम पर दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब हमें लास्ट आईडी गेट करनी है कि जो लास्ट एलिमेंट बना उसकी आईडी क्या है। ठीक है, तो यहाँ जाओ, क्लोज कर दीजिए इसको, और गेट करेंगे लास्ट आईडी यहाँ से। इसको क्लोज करिए, और जो भी मैटर हमारा यहाँ लिखा हुआ है इस पूरे को करिए कॉपी, और यहाँ से इसको हम लोग करेंगे सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। चलिए ओपन करेंगे अपनी फाइल। If you have a insert or update on a table with an auto increment field, we can get the ID of the last inserted or updated record immediately. जैसे आप अपडेट करोगे तो आपको लिखाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, जो भी आपका नंबर होगा। सो इन द टेबल अभी हम लोग लास्ट इंसर्ट वाले का पता लगा रहे हैं। इन द टेबल माई स्टूडेंट्स द ID कॉलम इज एन ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड। हम ऑटो इंक्रीमेंट क्लियर हो गया ना क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिकॉर्ड बनते जाएंगे नए नए आईडी असाइन होते जाएंगे। इन द टेबल माई स्टूडेंट द आईडी कॉलम इज एन ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड। द फॉलोइंग एग्जांपल आर इक्वल टू द एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल एक्सेप्ट दैट वी हैव एडेड वन सिंगल लाइन ऑफ कोड टू द आईडी ऑफ द लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड। वी ऑल्सो एको द लास्ट इंसर्टेड आईडी। ऊपर का सब कुछ सेम है, हमने बस यहाँ पर क्या करा, हमने लिखा डॉलर लास्ट आईडी इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट से हमने निकाला इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब ये देखो इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी हमने कहीं नहीं डिफाइन किया, ये इसका प्री डिफाइंड पार्ट है। हमने क्या लिखा, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड लास्ट इंसर्टेड आईडी इज लास्ट आईडी, हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो लास्ट इंसर्टेड आईडी किसके पास होगी, इसके पास है जो हमने यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ पर आपका जैसे ही चला तो क्या लिखाया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड लास्ट इंसर्टेड आईडी इज। अभी यहाँ पर हमारे पहले कितने थे, अब जरा रिफ्रेश करो, छठा रिकॉर्ड किसका बना, जयंत परचा का बना है ना। वैसे हमारे साउथ एक्स के बच्चे जो चल रहा है। ठीक है, तो ये जयंत परचा का हमारा रिकॉर्ड एक क्रिएट हो गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइस्क्यूएल में प्रिपेयर्ड क्या काम करता है, और यही वो पार्ट है जिससे आप अपने डेटा एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाते हो। ठीक है, तो ज़रा इसको देखो, प्रिपेयर्ड वाली फाइल को ओपन करेंगे, और यहाँ पर पूरी कहानी कॉपी करो और यहाँ लाके इसमें डाल दो।
prepared statement are very useful against SQL injections. Prepared statement are and bound parameter. A prepared statement is a feature used to execute the same or similar SQL statement repeatedly with high efficiency. So prepared statement basically work like this. Prepare. An SQL statement template is created and sent to the database. Certain values are left unspecified, called parameter labeled like question mark. Example, insert into my guest value question mark question mark question mark. This is a prepared. यानी कि अब हम लोग जो माई गेस्ट को डेटा जो दे रहे हैं डालने के लिए, जो अभी तक हमने किया, वो डायरेक्ट ना दे के हम लोग अलग से दे रहे हैं उसको। और हम लोग यहाँ पर डेटा का टाइप डिफाइन कर देंगे कि भाई फर्स्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग है, मिडिल नेम जो है वो स्ट्रिंग है, या लास्ट नेम जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो नंबर है। तो यानी कि अब डेटा का जो जा रहा है उसका टाइप भी होगा, ठीक है। तो यानी कि अब आप डेटा डायरेक्ट ना देके क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल, लेकिन वैल्यूज में यहाँ पर आप फर्स्ट नेम का, मिडिल, लास्ट नेम का और ईमेल को डायरेक्ट ना लिख के क्वेश्चन मार्क में छोड़ दोगे। अब हम इसको पहले चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, द डेटाबेस पार्स कंप्लाइज and performs query optimization on the SQL statement template and store the result without executing it. तो ये अपने पास स्टोर करेगा भेजने से पहले। Next, execute a later time. The application binds the value to the parameter and the database execute the statement. The application may execute the statement as many times as it wants with different values. So compared to executing SQL statement directly, prepared statements have three main advantages. Prepared statement reduce parsing time as the preparation of on the query is done only once, although the statement is executed multiple times. Bound parameter minimize bandwidth to the server as you need send only the parameters each time and not the whole query. Prepared statement are very useful against SQL injection because parameter value which are transmitted later using a different protocol need not be correctly escaped. So if the original statement template is not deriving from external input, SQL injection cannot occur. तो आपका SQL injection से आप बच जाओगे अगर इस अप्रोच का आपने यूज कर रखा है। तो चलिए कैसे करते हैं prepared statement in MySQL है। The following example uses prepared statement and bound parameter in MySQL है। So सब कुछ सेम है, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पर स्टार्ट होगा, हमने बोला कि भाई स्टेटमेंट जो है कनेक्शन, उसको हमने क्या बोला, प्रिपेयर करा है। अभी तक आप क्या करते थे, स्टेटमेंट और सीधे लिखते थे इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट। अब क्या आपने क्या कर दिया, उसके आगे हमने लगा दिया कनेक्शन ऑब्जेक्ट में प्रिपेयर। क्या बोला, इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, बट डेटा नहीं दिया मैंने क्या बोला, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि 3 वैल्यू तो 3 क्वेश्चन मार्क, 10 वैल्यू तो 10 क्वेश्चन मार्क। समझ गए। अब आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट को बाइंड पैरामीटर, पहले क्या करा प्रिपेयर, फिर क्या करें बाइंड। हमने लिखा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस बोले तो तीनों के अंदर डेटा का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। एस का मतलब स्ट्रिंग, आई मतलब इंटीजर, है ना। तो फर्स्ट नेम इज अ स्ट्रिंग, लास्ट नेम इज अ स्ट्रिंग एंड ईमेल इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग नंबर को भी ले लेता है और टेक्स्ट को भी ले लेता है ना। अब हमने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसको कि भी सेट पैरामीटर्स टू एग्जीक्यूट। हमने बोला फर्स्ट नेम सुमित, लास्ट नेम थापा, ईमेल इज दिस, और इसको एग्जीक्यूट करो। फिर मैं क्या बोला, कनिका बेस्ट, उसका ईमेल आईडी और एग्जीक्यूट। फिर मैं बोला वंशिका मानव, उसका ईमेल आईडी और एग्जीक्यूट। और यहाँ पर रिटर्न करो न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। स्टेटमेंट को क्लोज करो और कनेक्शन को क्लोज करो। तो उसका हाथ में वो डेटा लेगा ही नहीं, ठीक है। पहले हमने क्लोज नहीं कर रखा था, अब कर दिया। अब क्या लिखा रहा है, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब जब मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा डेटा देखो सेम ही आएगा, कोई लुक एंड फील में चेंज नहीं है। चेक करो तो देखो जयंत का रिकॉर्ड बना, सॉरी सुमित थापा से शुरू किया, सुमित का रिकॉर्ड आया 7 नंबर, कनिका बेस्ट, वंश का डेटा आ गया। अब कोड को समझो जरा, कोड लाइंस टू एक्सप्लेन फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर लिखा है। इन आवर एसक्यूएल वी इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क वेयर वी वांट टू सब्स्टिट्यूट इन एन इंटीजर स्ट्रिंग डबल और ब्लॉक वैल्यू। तो मान लो अगर आपका डेटा यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर आ गया तो आपने आई का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको कोई फ्लोटिंग नंबर आ गया तो आपने डी का इस्तेमाल करना है, मतलब डबल, जैसे 11.5, जैसे कोई प्राइस वगैरह अगर प्रोडक्ट का अपलोड करा रहे हो तो उस केस में। सो देन वी हैव अ लुक एट द बाइंड पैरामीटर फंक्शन। हमने लिखा स्टेटमेंट बाइंड पैरामीटर एसएसएस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल।
This functions bind the parameters to the SQL query and tells the database what the parameters are. The triple S argument lists the types of data the parameter are. The S character tells MySQL that the parameter is a string. तो सारे टाइप मैंने लिख दिया यहाँ पर, I बोले तो इंटीजर, D बोले तो डबल, S बोले तो स्ट्रिंग, B बोले तो ब्लॉक. So the argument may be one of 4 types. इसके अलावा 5 में कोई टाइप होता ही नहीं है डेटाबेस में एंट्री कराने के लिए. We must have one of these for each parameter. By telling MySQL what type of data to expect, we minimize the risk of SQL injection. So note, if we want to insert any data from external source like user input, it is very important that the data is sanitized and validated. तो HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या कर रहा है, HTML एंटिटीज को रोक रहा है. ये वाला जो आपका है, ये बैकएंड में जो SQL क्वेरी लोग भेज देते हैं, ये उससे बचाएगा हमें, क्योंकि SQL क्वेरी में HTML का तो कोई भी टैग होता ही नहीं ना. जितनी भी हमने पढ़ी, क्या कहीं पर HTML का कोई टैग दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना. और किसी ने अगर ये चला दिया तुम्हारे इसमें, तो तुम्हारा डेटाबेस अटक जाएगा बीच में. और ये कब अटकेगा? जब तुमने अपने डेटाबेस में डेटा डायरेक्ट ले रखा होगा. जो भी हमने ऊपर के एग्जांपल देखे सारे, तो हमेशा डेटा ऐसे लेना है, ठीक है. अब ऐसा अगर डेटा हो गया तो वो यहाँ पर क्या करेगा, आपने उसका टाइप बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग है, तो क्या करेगा, जो भी क्वेरी को भेजेगा, ठीक है, फर्स्ट नेम इज इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट्स, चलने नहीं देगा उसको टेक्स्ट बना के रख देगा अपने पास में. लो जी फर्स्ट नेम ये है, तो समझ गए ना. यानी डेटा जो है क्वेरी ना जाके वो टेक्स्ट जाएगा. ये आपको फायदा मिल रहा है इसका. यही है जो आपकी वेबसाइट को हैक होने से बचाता है, ठीक है. नहीं तो कोई भी तुम्हारी वेबसाइट में घुस के कुछ भी क्वेरी चला देगा, उसको ये पता लग जाएगा टेस्ट करके, अच्छा इस नाम के ये फील्ड है, फिर वो लग जाएगा अपना कार्यक्रम करने तुम्हारा डेटा निकालने में. अब यहाँ पर जब तुमने बाइंडिंग कर दी उसकी अलग तरीके से, तो नहीं निकलेगा डेटा. नेक्स्ट आते हैं, अब डेटा हम लोग बैकएंड में डाल चुके हैं, अब बैकएंड से फ्रंट एंड पे लाना सीखते हैं कैसे आएगा. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेलेक्ट डेटा. सो सेलेक्ट डेटा में आइए, और यहाँ से हम अपना ये 2 लाइनें उठा लेंगे. क्या सबके केस में? हाँ, हम PHP नहीं पढ़ रहे भाई, हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं, MySQL. PHP थोड़ी का पढ़ रहे हैं. इसमें कौन सा PHP का टैग दिख रहा है तुम्हें? ये PHP नहीं है, क्लियर करो इस चीज को. आपका टॉपिक चल रहा है MySQL डेटाबेस, जो कि सबको आना बहुत ज़रूरी है अगर कोई डेवलपर कहता है अपने आप को. तो चलिए अब हम बात करें सेलेक्ट डेटा की. Select data from a MySQL database. The select statement is used to select data from one or more table. मैं एक या एक से ज़्यादा टेबल को क्लब करके डेटा पुल कर सकता हूँ पीछे से. और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर इनिशिएट करते हो, ठीक है, आपने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया और आपका एड्रेस पहले से रखा होता है. जब आपका इनवॉइस जनरेट होता है उसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं, प्लस आपने प्रोडक्ट के लिए वो आता है. तो ऑर्डर की टेबल अलग है, शिपिंग की टेबल अलग है, प्रोडक्ट की टेबल अलग है. तो हम 3 जगह से डेटा लेके पूरा एक इनवॉइस बना लेते हैं, समझ गए ना. लेकिन अभी हम लोग 3 पे नहीं जाएंगे. ये सब जो होता है वो जॉइनिंग बोलते हैं टेबल की, यानी कि इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन. पढ़ रखा ना भाई, नाम सुना था ना जॉइनिंग का. तो वो चीज़ें होती हैं. हाँ, तो दी सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले, सेलेक्ट करो, कॉलम का नेम बताओ, फील्ड का नेम आप बताओगे, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम क्या है. तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, और वी कैन यूज द स्टार कैरेक्टर टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल. तो जैसा आपने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट यानी कि स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. तो माई स्टूडेंट में जितना भी डेटा होगा आपने सारा ले लिया वहाँ से स्टार लगाने से.
और अगर आपने पर्टिकुलर नाम लिखा तो पर्टिकुलर नाम का डेटा आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेलेक्ट डेटा विद MySQL द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट्स द आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम्स फ्रॉम द MyStudent टेबल एंड डिस्प्ले इट ऑन द पेज। तो ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा कनेक्शन तक, यहाँ कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वेरी पे नजर डालेंगे। हमने लिखा एसक्यूएल क्वेरी का हमने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी रख सकते हो उसको। हमने एसक्यूएल में रिक्वेस्ट करें तो इसलिए हमने लिखा $SQL सेलेक्ट करो आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल छोड़ दिया हमने, क्या बोला कहाँ से, फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, MySQL की जितनी भी क्वेरी चलती है आप अपर केस लोअर केस केस सेंसिटिव नहीं होता कैसे भी चला सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपर केस में ही लिखना, ठीक है। आप जो भी क्वेरी बनाएंगे वो आपने अपर केस में ही लिखनी है। तो सेलेक्ट इज ए क्वेरी, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज इन फील्ड नेम, है ना, फ्रॉम अगेन क्वेरी माई स्टूडेंट्स इज माई टेबल नेम, ठीक है। तो MySQL की जितनी भी क्वेरी चलती है वो अपर केस में ही चलाई जाती है। बेस्ट है, स्मॉल लिख दोगे तो भी चलेगा, बट आपने अपर केस का ही इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या बोला, यहाँ पर देखो इधर हमने बोला डॉलर रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया और हमने क्या लिखा इक्वल टू कनेक्शन, और हमने क्वेरी के अंदर एसक्यूएल को कॉल करा दिया। तो ये क्या, इसके पास सारा डेटा आ गया, हमने क्वेरी के अंदर रख लिया इसको। हम क्या बोलते हैं, अगर रिजल्ट के पास ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ रोज अगर 0 से ज़्यादा है तो उसको वाइल लूप कर दो। हमने कहा वाइल लूप में डॉलर रो, ठीक है, ये कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने रो क्यों डाला, मीनिंगफुल, क्योंकि हम लोग रो को बाई रो डेटा लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा डॉलर रो इक्वल टू डॉलर रिजल्ट, और वहां से क्या करेंगे फैच एसओ, फैच एसओ का मतलब फैच एसोसिएटिव एरे, दिस इज फंक्शन ऑफ एसोसिएटिव एरे। और यहाँ से हमने क्या लिया डेटा आईडी। अब एसोसिएटिव जब मैंने पढ़ा था उसमें क्या होता है की और की वैल्यू। अब की क्या होगी आईडी, की क्या हो गया फर्स्ट नेम, की क्या हो गया लास्ट नेम। जब मैं की को रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे इसकी जगह पर उसका डेटा दिखाई देगा। चलो हमने यहाँ पर लिखा अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर एरर ना हो, लिखा है 0 रिजल्ट, और अगर है तो डेटा है। तो नीचे क्या लिखा आ रहा है, मेरे बैकएंड में ये सारा डेटा रखा था, 2 बार मैंने नितिन बनाया था, नितिन, नीरज, सौरभ, तुषार, जयंत, सुमित, कनिका, वंशिका, और देखो इतना ही डेटा यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। टोटल 9 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, आईडी इक्वल टू रो आईडी, नेम इक्वल टू रो नेम, और लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से आईडी इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये डेटा देखो बैकएंड में जो रखा है हमने फ्रंट एंड में लिफ्ट किया इस तरीके से। अब आप कल को कुछ भी डेटा ला सकते हो, पीछे से इमेज लाना हो, जो मर्जी लेके आना है निकाल सकते हो उसके अंदर। तो टेंशन मतलब अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि तुम सोचो इतना ही करा के बहका देंगे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी हम। सो कोड लाइन टू एक्सप्लेन फ्रॉम द एग्जांपल अबव, फर्स्ट वी सेट अप एन एसक्यूएल क्वेरी दैट सेलेक्ट द आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम फ्रॉम द माई स्टूडेंट टेबल. The next line of code runs the query and puts the resulting data into a variable called result. हमने यहाँ बनाया, तो पहले हमने क्वेरी चला के डेटा एसक्यूएल में स्टोर करा और उसका सारा डेटा इक्वल किस कर दिया ला के रिजल्ट में। रिजल्ट में कैसे डाला, क्योंकि हम इससे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कनेक्शन के थ्रू, कनेक्शन के अंदर से हमने क्वेरी ऑब्जेक्ट निकाला और उसके अंदर हमने एसक्यूएल को स्टोर कर दिया, ठीक है। और अब इसके पास जब ये सारी चीज़ें हैं तो रिजल्ट के पास मतलब डेटा आ गया। अब हमने रिजल्ट के अंदर बोला कि भाई रिजल्ट के अंदर से नंबर ऑफ रोज अगर 0 से ज़्यादा है तो डेटा रिटर्न करो, अदरवाइज बोल दो कि 0 रिजल्ट, ठीक है, इस तरह से। देन द फंक्शन नंबर अंडरस्कोर रोज चेक इफ देयर आर मोर देन 0 रोज रिटर्न। ये जो हम लोग क्या लिख रहे हैं, नंबर अंडरस्कोर रोज क्या कर रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि भाई रो क्या ज़्यादा है 0 से या कम है। अगर कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो डेटा वाइल लूप हो जाएगा। फिर क्या लिखा, इफ देयर आर मोर देन 0 रोज रिटर्न द फंक्शन फैच एसोसिएटिव पुट ऑल द रिजल्ट इनटू एन एसोसिएटिव एरे। अब ये एसोसिएटिव पढ़ चुके हो, अभी मैंने रिपीट भी कर दिया आपको, है ना। दैट वी कैन लूप थ्रू द वाइल लूप लूप्स थ्रू द रिजल्ट सेट एंड आउटपुट्स द डेटा फ्रॉम द आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम। तो डेटा बैकएंड से निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बट जब लोग बैकएंड से डेटा निकालते हैं तो एसोसिएटिव सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि जो की है वो कॉलम का नेम है। तो की क्या थी, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और जब हमने रजिस्ट्रेशन डेट डिफाइन किया था अपना वो चीज़, ये सब क्या है, की है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर। अब वेयर वाली हम लोग देखेंगे, ये बहुत कमाल की चीज़ है और डिलीट करने के टाइम पर भी
केयरफुल ना, नहीं तो बड़े बड़े कांड हुए इसके चक्कर। चलिए वेयर में आएंगे और एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ जाके एंटर, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करो और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 27। रिलोड। चलिए तो देखेंगे सेलेक्ट एंड फिल्टर डेटा from a MySQL database. The where clause is used to filter records. ठीक है, अब चाहे वो अपडेट के केस में हो, डिलीट के केस में हो, या खाली डेटा मुझे बैकएंड से लिफ्ट करना हो उस केस में। So the where clause is extract only, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट करके आएंगे, टाइप एरर हुआ हमारा। extract only, रिफ्रेश, those records that fulfill a specified condition। जैसे कि select कॉलम का नेम मे बी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम टेबल का नेम जैसे कि हमारा माई टेबल है। वेयर कॉलम नेम, ठीक है, एंड ऑपरेटर वैल्यू। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? सेलेक्ट एंड फिल्टर डेटा विद MySQL। द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट द आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम फ्रॉम द माई स्टूडेंट टेबल वेयर द लास्ट नेम इज थापा। अरे हमने सुबह थापा डाला था ना अभी, तो लास्ट नेम हम लोग ढूंढ के निकाल लेंगे भाई इस नाम के कितने लोग हैं, थापा सारे ढूंढ के निकालो, ठीक है। एंड डिस्प्ले इट ऑन दी पेज। हमने लिखा है यहाँ पर, ये सब बोल रहा है, ये ऊपर का ये जो पढ़ चुके हो। क्या क्वेरी देखो, सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माय स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इक्वल टू थापा। तो टेबल हो गई हमारी, यहाँ पर कॉलम का नेम हो गया और यहाँ पर जो कॉलम का एंट्री है वो हो गया हमारा, है ना। हमने बोला यहाँ से इसको डेटा को सेम जैसा आपने वो अभी बैकएंड से पूरा डेटा रीड किया था वही तरीका रहेगा। थापा हो सकता है एक हो, थापा हो सकता है बहुत सारे हो, बहुत सारे हो तो लूप हो जाए, एक है तो एक बार लूप चलेगा बंद हो जाएगा, और नहीं होगा तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आईडी नंबर 7 पे उसको थापा मिल गया बैकएंड के अंदर, तो इतना आ गया। अगर मैं 2 थापा बना दूँ 2 थापा आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। सो कोड को समझो, द कोड लाइन टू एक्सप्लेन फ्रॉम द एग्जांपल अबव। फर्स्ट, we set up an SQL query that select the ID first name and last name column from the MyStudent table। ठीक है, हमने यहाँ पर सब चीज़ें बताई, ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्योंकि तभी तो आप यहाँ पर ID को वगैरह को प्रिंट करा रहे हो कि ID कौन सी है, नेम क्या है ना। The next line of code runs the queries and put the resulting data into a variable called result। Then the function number of rows आपको वही चेक कर रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड 0 से ज़्यादा है तो रिटर्न, अदरवाइज नो रिकॉर्ड्स, यानी कि 0 रिजल्ट्स फाउंड। If there are more than 0 rows written, the function fetch associative puts all the results into an associative array, and then we can loop through, the while loop loops through the results and the output and data from the ID first name and last name column। बाकी सब कुछ सेम ही हो रहा है, बस हमारी यहाँ पर वेयर की क्वेरी क्या कर रही है, डेटा ढूंढ के निकालिए कि थापा कहाँ है। अब मान लो कि भाई जैसे मेरा अरीना का डेटाबेस है, मुझे ये पता लगाना है कि भाई बिहार से कितने लोगों ने एडमिशन लिए, तो मैं स्टेट नेम का एक क्वेरी चला दूंगा, बोल दूंगा भाई ढूंढो कब बिहार के या वहाँ से कितना डेटा है हमारे पास। तो अब 50 हो, इस फाइनेंशियल ईयर में 100 हो, वो सब डेटा निकाल के मुझे ला देगा उसके अंदर से। तो मुझे पता चला भाई एक झटके में कि भाई अब तुम्हें मैं एक्सेल दे दूँ, लगे रहो खेलते रहो, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्सेल में तुम्हें बोलूँ कि वहाँ पे फिल्टर करने का एक फीचर होता है, तो 1 मिनट में निकाल लोगे तुम ढूंढ के, सीधे फिल्टर की कमांड चलाओगे, क्योंकि SQL जो चलता है फिल्टर वहीं से आया पूरा माइक्रोसॉफ्ट के उसमें। पहले जितने भी डेटाबेस बनते हैं ना भाई, बड़े से बड़े सब एक्सेल में बनते हैं अब भी, क्योंकि SQL में बना के उसको एक्सपोर्ट मार दो SQL, और एक्सेल से बन जाती है जेसन, सारी सब कुछ बना सकते हो वहीं से, कितना भी बड़े से बड़ा डेटाबेस हो। तो बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जैसे मान लो कि ये तुषार है, कुछ सामान बेचता है, अब फ्लिपकार्ट इतना सीधा थोड़ा इसको बोले जी हाँ मेरे यहाँ पर तो अपना एंट्री बनाए डेटाबेस के अंदर एक एक करके, तुम तो खराब करके आ जाओगे इसका। तो वो क्या करते हैं, तुम्हें एक एक्सेल फाइल बना के दे देता है कि लो भाई इसको लेना और अपलोड मार देना,
एक्सेल फाइल के अंदर लिख लो अपने सारे पैसे, प्राइस, टाइटल वाइटल जो भी है सारी चीज़ें, यहीं पर इंडेक्सिंग कर लो सब। तो यहाँ देखते हो क्या है, एक डेडिकेटेड टैब डेटा, यही होते सारे कमाल। तो देख रहे हो डेटा कहाँ से लेना है, एक्सएमएल, जेसन वेसन सब आ गए अपने, CSV। और फिर डेटाबेस की बात करते हैं, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विस, एसक्यूएल एनालिसिस, ओरेकल, IBM, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस, सब आ गए, सब दिया हुआ है इसमें। यहाँ से एजूर का आ गया अपना, यहाँ से ऑनलाइन जितनी भी आपकी सेल्स फोर्स होते हैं जैसे कि आपका हब स्पॉट वगैरह, वहाँ का भी डेटा पूरा लेके आ सकते हो। यहाँ से वेब से कहीं से डेटा उठा सकते हो, ठीक है। तो हेडूप वगैरह के आप देख रहे हो, उसके भी डेटा, शेयर पॉइंट वगैरह का डेटा भी आप लेके आ सकते हो। हाँ, शेयर पॉइंट बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होता है, और शेयर पॉइंट का होता है ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है एनालिसिस के लिए, मतलब फ्रेशर में सैलरी लाखों रुपए की होती है, ठीक है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही है वो पूरा का पूरा गेम जहाँ से डेटाबेस का गेम चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में एक्सेल को बना दिया डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, जबकि ये डेटा एंट्री का नहीं, ये एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है, इसमें एनालिसिस निकाले जाते हैं। आप देख रहे हो ऊपर व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट शीट, आप सब कुछ यहीं से बना सकते हो अपना सारी चीज़ें। क्योंकि मेरे को ये निकालना हो कि भाई लास्ट ईयर का मेरा बिजनेस ये है, तो इस साल का मेरा फोरकास्ट अपना बना देगा ये एनालिसिस करके। आपको कुछ नहीं बताना कि भी मैंने जैसे लास्ट ईयर 1 करोड़ का बिजनेस करने वाला चाहिए, तो इस बार मैं 2 करोड़ कर दूंगा, कैसे कर देगा भाई। डेटा यहाँ डालो, वो बताएगा कितना होगा तुम्हारा, तुम्हें कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे 2 करोड़ पहुँचने के लिए, है ना। तो यहाँ सब दिया होता है, तो ये अपना फोरकास्ट निकालता है, समझ गए, आपके डेटा को एनालाइज करके। तो एनालिसिस जो होते हैं वही तो बताते हैं कि भाई अगले साल क्या होने वाला है, या जैसे एनालिसिस तो होते तो बताते हैं भाई 5 दिन बाद बहुत भयंकर बारिश पड़ेगी, तो वो वेदर सैटेलाइट जो डेटा कैप्चर कर रही है अलग अलग जगह से, उसी को तो एनालाइज करके निकालते हैं कि अच्छा भाई इन स्टेट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। अब तुम कहते हो यही नहीं, तो पागल है मौसम विभाग वाले, तो नहीं पागल नहीं, वो अनुमान होता है उनका, वो गारंटी थोड़ी देनी लिख के किसी स्टैम्प पेपर जी होगी ही होगी। एनालिस फोरकास्ट क्या होता है, अगर हमने सुना हो भविष्यवाणी, ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो नियर बाई भी हो सकता है और बियॉन्ड भी हो सकता है, बट एक आपको आइडिया आ गया कि ये हो सकता है। अब आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, समझ गए ना। तो ये है एक्सेल के एक्चुअल पावर, कि आप कुछ भी करवा सकते हो इसके थ्रू। जैसे मैंने शायद ऑनलाइन आपको एक दिखाया भी होगा कि भाई मेरे, जो मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे पास 5 सेंटर है एग्जाम्पल के लिए, या 7 सेंटर है मेरे पास, तो कौन सेंटर कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। अब या तो बैठ के डेली एंट्री खेलता रहूँ बैठ के, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेल्स रिपोर्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है, सभी सेंटर का डेटा मैंने एक जगह पर लिया और उसको मैंने प्रोसेस कर दिया मास्टर डेटा के अंदर लाके यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा फाइनल जो डेटा है अपना ग्राफ बन के तैयार हो गया सब। तो अभी देख रहे हो पहले खाली आ रहा था, अब डेटा आ गया, क्योंकि उसने प्रोसेस किया ना डेटा को उतनी देर में, और सारे ग्राफ बना दिए उसने, ब्रांच 1 ब्रांच। तो यहाँ पर ग्रीन वाला क्या है, सॉरी ब्लू वाला क्या है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, खर्चा कितना कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ देख रहे हो सारी सारी ब्रांच है, नीचे नीचे सबका डेटा यहाँ पर है, ठीक है। फिर इन सारी ब्रांच को मैं एक प्राइवेट टेबल में लेकर आया इधर, फिर मैंने यहाँ से और एक और प्राइवेट टेबल बनाई, फिर एक और मैंने यहाँ पर प्राइवेट टेबल बनाया, फिर मैंने इस पूरे डेटा को एक जगह पे लाके कंबाइन किया, यानी कि अगर यहाँ पर डेटा में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है मेरा रियल टाइम में। लास्ट ईयर का जो मेरा यहाँ पर रिवेन्यू है, करंट ईयर का जो मेरा रिवेन्यू रहेगा इसके अंदर, कि पिछले साल कितने एडमिशन, इस साल कितने एडमिशन हुए, पिछले साल का रिवेन्यू कितना है, इस साल का रिवेन्यू कितना है, सारा डेटा यहाँ पर चल रहा है। और उसी से मेरा फिर ये डैशबोर्ड बनके तैयार हो रहा है, और यहाँ लाके फिर मैं इसी डेटा से विजुअल बना रहा हूँ। अब मैं अगर बॉस को दिखाऊँ भाई ये देख लो, वो तो पागल हो जाएगा देख देख के, भाई क्या नहीं दिया तुमने मुझे, मैं क्या टोटल करूँ इसका। अब उसको ये समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। मुझे इजीली समझ में आ गया, अच्छा ब्रांच 1 अच्छा 14% काम करो भाई, ठीक है। इस तरह से फिगर्स में डेटा आ रहा है। तो जिस भी ब्रांच, ये जैसे ब्रांच 1 है नीचे गई, फिर वही तुम्हारा ऊपर ब्रांच 3 जो है सबसे ऊपर बढ़िया चल रही है, फिर उसके बाद तुम ब्रांच 7 नीचे जा रही है, तो सबका ब्रांच का ग्राफ दिखाई दे रहा है कि कौन कितने पानी। तो मैंने एक ही डेटा के अलग अलग विजुअल बना दिया कि ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, जिसमें समझ में वैसा देख लो। सबसे आसान समझने के लिए कंपैरिजन के लिए वाला है ना, कि लाल वाला अच्छा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ब्लू वाला खर्चा मतलब ठीक है, इस तरह से चल रही है। तो यही काम हम लोग कोडिंग से करते हैं फिर, क्योंकि कोडिंग में भी डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, जो मैं इसको बोल रहा था बनाने के लिए।
तो वहाँ बनेगा ये सेम चीज़, ठीक है। तो रियल टाइम में डेटा वहाँ पर अपना चेंज होता रहेगा। तो मैंने एक्सेल में घंटे भर में बना दिया था पूरा ही। चलिए, तो ये हम लोगों ने सीखा कि वेयर क्लॉज किस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट क्लॉज पर आते हैं, ऑर्डर बाय। अब जो बैकएंड से डेटा है वो अभी क्या है, आईडी वाइज आ रहा है 1 2 3 4। उसको ये मतलब नहीं कि अल्फ़ाबेटिकली क्या है, लेकिन मैं उसको अल्फ़ाबेटिकल लगा सकता हूँ। कैसे करना है, अगेन यहाँ से हम लोग ये अपनी दो चीज़ उठाएंगे और यहाँ ला के कर लेंगे कॉल। इसके बाद इसकी क्लोजिंग करा लेंगे। यहाँ पर एसक्यूएल एक दिन में हो जाता है, सीखने के लिए ज़िंदगी और ख़त्म नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा है। जितना आप सीखोगे उतने नई नई चीज़ें निकाल सकते हो उसके अंदर। डेटाबेस को कितना ही ब्रॉड बना लो, अब ई कॉमर्स वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है छोटा सा नहीं होता, बहुत कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन बेस यही होता है सबका, है ना। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारा डेटाबेस बेसिक से शुरू होके और ब्रॉड होता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं अपना नया टॉपिक ऑर्डर बाय। बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ऑर्डर बाय पर क्लिक करेंगे, जूम करेंगे। The order by clause is used to sort the result in ascending or descending order। मतलब घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में आप उसको देख सकते हो। The order by clause sorts the record in ascending order by default। ascending default होता है। To sort records in descending order using DESC। ये आपको लिखना पड़ेगा। ESC होता है ascending, DESC होता है descending। तो आपको कॉलम के आगे ये लिखना पड़ेगा। असेंडिंग के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डिसेंडिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो सेलेक्ट द ऑर्डर डेटा विद MySQL। तो द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट्स द आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलम फ्रॉम द MyStudent टेबल। द रिकॉर्ड विल बी ऑर्डर्ड बाय द लास्ट नेम कॉलम। तो लास्ट नेम को सीक्वेंस में लगाएगा। चलो, क्या लिखा हमने, ऑर्डर बाय लास्ट नेम। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बता रहा हूँ, असेंडिंग चलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर और कुछ नहीं करना, नीचे सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ इतना चेंज किया हमने MyStudent के आगे ऑर्डर बाय लास्ट नेम, दैट्स इट। तो देखो, बी के बाद अल्फ़ाबेटिकली हमारा क्या आ गया, के के बाद क्या था एल के बाद आता है एम के बाद क्या आता है NOP QR SST। लग गया डेटा। अब मान लो कि आपने कोई न्यूज़ की वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग, और उसमें न्यूज़ जो है वो ना अलग अलग स्टेट की सिटी वाइज हमें इस तरह से आ रही है। अब आपने आज ANI की API खरीद ली एग्जाम्पल के लिए, अब जरूरी थोड़ी ना कि वो अल्फ़ाबेटिकल अमेरिका से स्टार्ट करेगा। तुम्हें डेटा देना, हो सकता है कि पहली न्यूज़ पता नहीं कहाँ से आ जाए, है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है डेटा। तो आप फ्रंट एंड पर जब डेटा लोगे तो सभी स्टेट को, कंट्री को सीक्वेंस में लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय। बैकएंड में चाहे ऑर्डर कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड में यूजर को सीक्वेंस, क्योंकि हम ABCD फॉर्म में डेटा को इजीली समझ पाते हैं ना। अब कहीं पर X आ रहा हो, कहीं पर Z आ रहा होगा तो दिक्कत देगा ना मेरे को चूज़ करने में। तो फ्रंट एंड पर क्या करेंगे, बैकएंड के डेटा को ऑर्डर बाय में लगा लेंगे। अब ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पर लास्ट नेम को लगाया क्योंकि यहाँ पर नेम का गेम चल रहा है। जब आपका कंट्री का होगा, स्टेट का होगा, तो स्टेट में तो आप ये तो लिखोगे नहीं स्टेट का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। स्टेट तो स्टेट होता है अपने आप में, यूनिक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऑर्डर बाय स्टेट करोगे तो स्टेट आपकी सारी अपना ऑर्डर में आ जाएंगी। अगर कंट्री का करोगे डेटा शॉर्ट तो कंट्री आपकी सारी ऑर्डर में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या कुछ कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है डिलीट डेटा। अगर मुझे कोई एग्जिस्टिंग डेटा रिमूव कराना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो डिलीट डेटा में आपको अगेन टेबल का रेफरेंस देना होता है और बताना पड़ता है कहाँ से मुझे डिलीट करना है डेटा। तो पहले की तो सारी बंद करो और यहाँ से ये उठा लो। चलिए डिलीट पाएंगे।
डेटा कॉपी पेस्ट, इन सब का सीक्वेंस सेट कर देंगे यहाँ पर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 कर दीजिए। चलिए, तो मैं अपने टेबल का यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा डेटाबेस है। मैं बैकअप के लिए डेटाबेस एक्सपोर्ट करके रख लेता हूँ। एक्सपोर्ट में किस फॉर्म में करना है एक्सपोर्ट, तो आप यहाँ देखेंगे CSV, अगर एक्सेल में ले जाना हो, ठीक है, CSV फॉर माइस एक्सेल, आप यहाँ से चूज़ कर। जेसन बनाना हो, इसी का आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो API इसने बनाई थी ना, तो मान लो SQL में बना लिया तो जेसन बना दो बाद में उसको पकड़ के यहीं से। तो सारे ऑप्शन आपके पास, डेटा का क्या करना है आपने, तो हमें SQL में एक्सपोर्ट मारना है। हमने एक्सपोर्ट करके रख लिया अपना बैकअप के लिए, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं ना। तो मेरे पास 2 एंट्री बन रखी है। कौन सी वाली, अगर आप बैकएंड में यहाँ देखोगे MyDB के अंदर हमारी 2 एंट्री बन गई थी ना सेम नाम की, नितिन, मैं एक नितिन को उड़ा देता हूँ उसमें से, है ना। तो चलो, तो डिलीट डेटा में हम लोग आते हैं और हम यहाँ के बोलेंगे अपने कोड के अंदर कि भाई डिलीट करो ID इक्वल टू जहाँ 2 है, क्योंकि 1 और 2 दोनों पे एक नितिन ही है ना। और यहाँ पे मैं क्या बोल दूँगा, फाइल खोलने से पहले 2। चलो, अब यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और डिलीट वाली फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखें, द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कॉलम का नेम और सम वैल्यू। हमने क्या बोला, डिलीट फ्रॉम माई टेबल माई स्टूडेंट वेयर कॉलम नेम ID इक्वल टू 2, ठीक है। सो नोटिस द वेयर क्लॉज इन द डिलीट सिंटैक्स। वेयर मत भूल जाना, अगर आपने लिख भी दिया 2 करना है, सारे करेगा डिलीट, भूलना नहीं वेयर। तो क्या लिखा है, द वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स दैट शुड बी डिलीटेड। इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज ऑल रिकॉर्ड्स विल बी, सब जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वेयर लिखना अगर भूल गए तो। द फॉलोइंग एग्जांपल, डिलीट द रिकॉर्ड विद ID इक्वल टू 3 इन द माई स्टूडेंट टेबल। तो हमने यहाँ पर कोड में लिखा है कि भाई डिलीट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स वेयर ID कॉलम वैल्यू 2। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, सबको सेम रहेगा। तो क्या लिखा था, रिकॉर्ड। अब जब आप रिफ्रेश करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ देखना ये जो नीरज है ये 3 ही रहेगा, 2 नहीं होगा। चेक करके देख लो, डेटा चला गया लेकिन वो 3 रहेगा, क्योंकि कल को अगर मान लो तुमने यहाँ से नीरज का रिकॉर्ड अपडेट मार दिया, 2 हो गया, अब वो कल को लॉगिन करने का कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी ID अलग है, कैसे कराओगे। तो इसलिए नहीं कराते हम लोग कभी चेंज। तो जिसका जो है, रहता है ठीक है, नहीं रहता तो ठीक है, आपका ID किसी और का साइन नहीं होगा। ID चेंज, आइडेंटिटी चेंज। नेक्स्ट, डिलीट के बाद हम लोग बात करेंगे अपडेट करने की। मान लो कि कहीं पर किसी का, मेरा लगता है कि सरनेम गलत हो रखा है, मुझे उसको चेंज करके आना है, तो अपडेट में भी वेयर की रिक्वेस्ट चलेगी। तो आप फिर से देखें, अपडेट, और यहाँ से हम एंटायर डेटा कॉपी करके अगेन यहाँ रखेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है खाली, क्या था, %GT और क्वेश्चन मार्क चाहिए मैं, सही है ना। चलो काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलिए, तो यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश कर लीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखो ID 2 को अपडेट करने जा रहे हैं, तो 2 की ID तो डिलीट हो चुकी है, तो मैं किसी और को ले लेता हूँ टारगेट, जैसे कि मैंने बोला 3। तो ओरिजिनल कोड में 3 करोगे, तो 3 को आप क्या करना चाह रहे हो, मैंने बोला अपडेट माई स्टूडेंट, सेट लास्ट नेम कर दो उसका कुमार। अब 3 पे कौन है, पहले देख लो कि इसको ऑलरेडी कुमार तो नहीं है, सिंह है, तो नीरज कुमार कर देता हूँ इसको। चलो, फाइल सेव,
refresh, update, or the update statement is used to update existing record in a table. Update table underscore name set column 1 equal to value, column 2 equal to value, where some value equal to some value, है ना. अगेन ध्यान से देख लो. नोटिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट सिंटैक्स. द वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स दैट शुड बी अपडेटेड. इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड, यानी सारे कुमार हो जाएंगे फिर. ठीक है, अगर नहीं लिखा हमने. सो यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक छोड़ दिया, इसको आपको करके आना पड़ेगा. रिफ्रेश नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है मेरा काम. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या लिखा. अपडेट माई स्टूडेंट सेट लास्ट नेम कुमार वेयर आईडी इज 3. जरा पेज को रीलोड करो. सिंह का कुमार बना कि नहीं बना? बन गया इस तरह से. नेक्स्ट और लास्ट क्वेरी, लिमिट डेटा. भाई बैकएंड मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे तो 5 ही चाहिए ना. जैसे इसका ऐसा समझो कि फ्लिपकार्ट में टी शर्ट की कैटेगरी में 40,000 टी शर्टें हैं. लास्ट 1 मिनट, हमारा टॉपिक भी खत्म हो रहा है. कितनी है? 23,000 टी शर्ट है, लेकिन ये लिमिट करके कितनी दिखा रहे हैं? 40. तो ये लिमिट कैसे हो रहा है? बस आपको आगे लिख देना है क्वेरी का कि लिमिट, जो भी आपको नंबर बताना है. तो चलिए लिमिट को ओपन कर लेंगे और यहाँ जाके हम लोग कॉल करेंगे अपना, और फिर नीचे लाके कॉल कर देंगे अपना क्लोजिंग, और इन बिटवीन अपना पूरा लॉजिक यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, पूरा सेलेक्ट और रिवर्स ले जाइए. काउंट मान लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. चलिए, तो लिमिट डेटा हम लोग देख रहे हैं. MySQL provides a limit clause that is used to specify the number of records to return from backend. The limit clause makes it easy to code multi-page results or pagination with SQL and is very useful for large table. Returning a large number on records can impact on performance. अब मान लो फ्लिपकार्ट कहता है भाई 23,000 टी शर्ट मैं तुम्हें एक साथ दिखा देता हूँ. तुम्हारा भी कंप्यूटर लैग मार जाएगा, उसके सर्वर पे भी लोड आ जाएगा. अब थोड़ा तो जैसे 40 की क्वेरी तुमने भेजी, यहाँ से वहाँ गई, तुम्हारे पास डेटा आ गया, क्वेरी बंद हो गई, तो उसको भी आराम मिल गया, तुम्हें भी आराम मिल गया. फिर तुमने दूसरा डेटा का क्वेरी भेजा, 40 का लोड उसके पास आया, उसने डेटा प्रोसेस करके तुम्हें दिया, तुम्हारे पास रेंडर हुआ, तुम्हारा काम खत्म हो गया. तो बहुत सारी वेबसाइट देखते हो, वो ऑन स्क्रॉल पर डेटा आता जाता है. PHP जो बनी थी ऐसी वेबसाइट बड़ी बेकार होती है, क्योंकि PHP वर्चुअल डोम तो चलाता नहीं है, यहाँ पर आपका फिजिकल डोम होता है. इस चक्कर में पीछे का जितना लोड ऊपर गया है वो भी काउंट हो रहा है, नया डेटा का भी लोड काउंट हो रहा है, तो आपका डेटा बहुत हैवी हो जाता है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं SQL क्वेरी सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम माय टेबल. लिमिट लगा दी हमने एग्जांपल की 30. ठीक है, तो चलिए द लिमिट ये हमने देख लिया. assume we wish to select all records 1 to 30 inclusive from a table called order. The SQL query would then look like this. हमने लिमिट लिख दिया इस तरह से. When the SQL query above is run, it will return the first 30 records. What if when to want to select records 16 to 25 inclusive? तो आप offset भी कर सकते हो कि मेरे को बीच का कोई लेना है. So MySQL also provide a way to handle this request. यहाँ typo error इनको fix करूँगा मैं by using offset. The SQL query below says return only 10 records start on number 16, offset 15. तो ये कैसा आएगा? SQL equal to select all from order limit 10 offset 15. तो पहले के 15 छोड़ के अगले 10 पकड़ेगा. या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट 10 ऑफसेट 10. ठीक है, तो लिमिट 15 की लगा दी हमने इस पर, और यहाँ पर 10 लिखा हमने. तो यानी कि ऑफसेट पहले आ गया, लिमिट बाद में आएगी इसमें. यहाँ पर ऑफसेट बाद में हो रहा है, यहाँ पर ऑफसेट पहले होगा, तो इसलिए ऑफसेट ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं. तो चलो यहाँ पर मैं लिखा है कि भाई सेलेक्ट करो आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माय स्टूडेंट्स और लिमिट लगा दो 5 की. ठीक है, और हमने यहाँ पर बताया कि या फिर दूसरी जो क्वेरी हमने चलाई कि भाई यहाँ पर 5 का डेटा दिखाओ, 2 का डेटा दिखाओ और 5 को ऑफसेट कर दो इसके अंदर. तो नीचे कुछ नहीं चेंज करना है, नीचे लूप वगैरह सब कुछ एज इट इज रहेगा. तो हमने देखो यहाँ पर क्या लिया है, 2 का डेटा लिया है, 5 का ऑफसेट लगाया, तो नंबर 7 से स्टार्ट हुआ.
क्योंकि एक रिकॉर्ड डिलीट कर चुके हैं तो 6 हमारे स्किप हो गए, 5 हमारे स्किप हो गए, सॉरी, क्योंकि 5 रिकॉर्ड हो गए जो स्किप हुए, 6 हमारा डिलीट हो चुका है, 7 में से डेटा आ गया हमारा। और अगर मैं इस क्वेरी में ये चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पर कि भाई ऐसे ना करके ऐसे लेके आओ डेटा को, इसको कमेंट कर देते हैं। अब आपको 5 डेटा ही दिखाई देंगे 1 से 6 तक, क्योंकि 2 डिलीट हो चुका है ना, ये तरीका। तो आप स्किप भी लगा सकते हो और इस तरह से, या फिर जो ऑफसेट करने के 2 तरीके हमने देखे, इस तरह से, या फिर शॉर्ट हैंड में स्किप इस तरह से करा सकते हो। ठीक है, तो जब आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तो अभी जैसे मेजर हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी है काम करने के लिए इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास हमारे प्रोजेक्ट अब स्टार्ट होंगे इसमें। देखो उससे पहले आपको पढ़ाऊंगा एजेक्स, बहुत ज़रूरी है PHP के साथ। ठीक है, एजेक्स का फ़ायदा क्या होता है कि बिना पूरा पेज रिलोड किए सिलेक्टेड पार्ट को आप अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं सीखोगे तो पूरा पेज रिफ्रेश कराते रहोगे, बार बार सर्वर को ओवरलोड करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो उतना ही डेटा बैकएंड से मांगो जितना तुम्हें चाहिए। नैप बार तुम्हारे पास है, फुटर तुम्हारे पास है, दोबारा क्यों लेना उससे, है ना। तो यही काम होता है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट पूरी की पूरी जो चलती है वो एजेक्स पे ही चलती है, सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एक्सेबल। तो इसी वजह से वहाँ पर आपकी ऐप जो होती है बहुत फास्ट होती है रिएक्ट में। सो लो जी, एक क्लास में हमने अच्छे से अपना डेटाबेस कंप्लीट कर दिया। अब आप इसके अंदर नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स मंथ आपके प्रोजेक्ट चलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉपर, अभी तो क्या ये जो अभी हमने डेटाबेस बनाना का जो प्रोसेस पूरा समझा है, ये हमने सीखा क्वेरी के थ्रू। क्वेरी सबको आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको डेटाबेस नहीं देगी फिजिकली चलाने के लिए। तो आपको क्वेरी से ही डेटा डालना है, क्वेरी से अपडेट करना है, क्वेरी से ही डिलीट करना है। तो क्वेरी आना ज़रूरी है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा MySQL वहाँ से पढ़ेंगे, एडमिन से जाके 15 मिनट में पूरा सीख जाते हैं। तो कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा कुछ, कैसे डेटा होते हैं, क्या टाइप होते हैं, सब सिखा दूंगा वहाँ से। तो ये जो तुम्हें पूरा देखा है, ये इसका अलग एडवांटेज है, उसका अलग एडवांटेज है। अब तुम क्वेरी लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो, या तुम कल को क्वेरी भूल गए, तो क्वेरी क्या है तो वो तुम्हें वहाँ से क्वेरी भी बता देगा, ये लिखो, समझ गए। तो वो भी सिखा दूंगा दूसरी टेक्निक। चलो आज के लिए ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।